Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, so far we just had finished rotational mechanics, and if you have any doubt, it will be cleared at the Friday lecture. Today I'm going to start a gravitation new chapter. I'm going to discuss some of the concept of gravitation that you had learned in the your NCRT book, and after that we are also going to discuss some of the new concept which is actually uh, not in your NCRT content, but it is helpful in the JEE and NEET session. So let's start chapter number 8, that is a gravitation. Friends, am I audible to you, everybody? Yes, sir. Okay, fine. So, friends, in this chapter, okay. So, friends, the very first thing that we had learned in this chapter is a gravitational force. So, anybody know the formula of the gravitational force? Gm1m2 upon r square. Yes, this was the gravitational force, but that is valid only for point like masses. So, the gravitational force can be definitely given by F is equals to G m1 m2 upon r square, and that is always in the attractive. But this formula is valid only and only for the point like masses, or if the distance between the two mass particle is very large. On that circumstances also we can consider the mass as a point like. So if the distance is very large, then also we can apply this formula. But अभी मैं जो फॉर्मूला देने वाला हूं वो सबके लिए है. For every situation. So the formula is F is equals to, if m mass is placed in the vicinity of the field intensity I, अगर कोई मास कोई और ग्रेविटेशनल फील्ड I में पड़ा हुआ है, खुद का ये इंटेंसिटी नहीं है, कोई दूसरे सिस्टम का इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, और उसमें अगर कोई पड़ा हुआ है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है F is equals to m into I, where I is the intensity of a gravitational field. Due to other body. तो फ्रेंड हम बहुत सारे केसेस जेडबल के अंदर ऐसे समझेंगे
डिस्कस करेंगे जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट मास लाइक नहीं होंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, तो यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला gm1m2 upon r square एट दैट टाइम. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी, and then after finding the intensity you can apply the formula F equals to m into I. Is that clear, friend? और यहाँ पे जो I है ना, वो खुद का मास, ये m ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, कोई और सिस्टम है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि ये एक रिंग है, एग्जांपल एक दे देता हूं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लो कि एक रिंग है, वो उसका मास कैपिटल M है और उसका रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, और वहां पे मुझे है ना स्मॉल m मास मुझे वहां पे प्लेस करना, मतलब मैंने वहां पे स्मॉल m मास प्लेस किया हुआ है. तो यहाँ पे आपका जो फोर्स होगा, द फोर्स बिकॉज ऑफ द रिंग ऑन द स्मॉल m मास विल नॉट बी गिवन बाय द फॉर्मूला g मामा अपॉन x स्क्वायर. ये फॉर्मूला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. इट इज नॉट ट्रू हियर, इट विल बी रॉन्ग. तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई यहाँ पे हम कैसे ये फाइंड करें. तो फ्रेंड्स हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी, आज के लेक्चर में ही हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग कैन बी गिवन बाय gmx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2. मतलब ये जो मास ऑन रिंग है ना, मास ऑन रिंग, तो उसके द्वारा इंटेंसिटी इतना प्रोड्यूस होता है. ओके, तो फिर फ्रेंड्स अगर इतना इंटेंसिटी प्रोड्यूस होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा भैया वो कितना होगा. तो अब जाके पता चलेगा कि अगर इंटेंसिटी इतना है तो फोर्स कितना हो जाएगा भैया. ये gmx upon x square plus r square, where r is the radius of the ring, raised to 3/2 into the small m. So this will be the formula of the force on the mass m. Is it understood, friend? Yes. तो this is not like a gm1m2 upon r square. मतलब अलग अलग केस में फोर्स का फॉर्मूला अलग अलग होता है. तो ये जो gm1m2 upon r square है वो पॉइंट लाइक मास के लिए ही है. तो हम आज ऐसे बहुत सारे केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जैसे ये रिंग का मैंने आपको बताया, तो ऐसे बहुत सारे दूसरे भी केसेस है कि जिसके हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और उसके बाद हमको उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा मास, फोर्स मिल जाएगा. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो पहले ये मैंने फोर्स के बारे में आपको बता दिया. अब दूसरा जो टॉपिक है ये चैप्टर का, दैट इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ. चलो अर्थ के एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं. तो द वेरी फर्स्ट केस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? बताएगा कोई? GME by R square.
GME by R square. हाँ, यहाँ पे कैपिटल M is the mass of the earth and capital R is the mass of obviously earth. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4/3 पाई R, ये RE and ME अभी मैं नहीं लिख रहा हूं because it is itself considered to be a mass of the earth and mass of the radius of the earth. तो इसको हम 4/3 pi G रो इंटू R भी लिख सकते हैं अगर डेंसिटी के फॉर्म में अगर लिखना है तो, where the density is equals to mass of the earth upon its volume. तो इसके हिसाब से भी आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो. Earth on the surface of the earth. Is that clear, friends? Is it okay? Yes, sir. Okay. Now come to the second case. At height h from surface of the earth. चलो, कोई बताएगा what is the formula at the height h from the surface of the earth? So it is a gm upon r plus h the whole square, if you remember. याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Actually, the basic formula was gm upon r square, where r is the distance of that object, distance of that point from the center of the earth. So that can finally written as a r plus h the whole square. Here I can assume r is greater than the radius of the earth. And this is valid for any value of the h. ये h के कोई भी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट, ये कोई भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है. बट अभी जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1 minus 2h by r. तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब आपके h का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा. याद आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay. तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फॉर्मूला. On the surface of the earth at the height. Now, what is the formula at depth? तो किसी को याद है फॉर्मूला क्या होगा? डेप्थ पे क्या होगा? और at a distance r, where r is less than a capital R, from center of earth. तो बोलो, कोई बताएगा मुझे what was the formula? है कोई? तो फॉर्मूला था 4/3 पा जी रो स्मॉल r.
मतलब g प्रोपोर्शनल टू r था। कहाँ पे? तो बोले अर्थ के अंदर की साइड g प्रोपोर्शनल टू r है। But the same formula can also be written in the form of d as well, and that was written as a g at the earth into 1 minus d by r. याद आ रहा है भैया? Yes, sir. ओके, चलो। तो ये फॉर्मूला था अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर शायद आपको याद हो तो मैंने एक और थ्योरी आपके साथ डिस्कस किया था, the variation of the acceleration with the latitude due to the rotational motion of the earth. याद आ रहा है कुछ? Variation in g due to rotation Yes, sir. वो cos of lambda earth. वाली formula Exactly. थी कोई। That is variation in g with a latitude lambda. तो फ्रेंड्स, उसका जो फॉर्मूला था तो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव एक्सेलरेशन। And that is given by g dash is equals to ge minus re omega square cos square lambda. So that was the formula. Sometimes this is also written in this manner, 1 minus re omega square cos square lambda by g. तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, where omega is equals to angular velocity of rotation of earth and lambda is a latitude. चलो, कोई मुझे बताएगा कि on the axis, on the pole, at the pole, what is the latitude at the pole? कोई बताएगा मुझे? बताएगा कोई मुझे? At poles, what should be the value of the lambda? Lambda का value 90 है। 90 degree. हाँ, that's why g dash becomes maximum over there, and that will be exactly equals to the surface of the earth. And at equator, the value of the lambda is 0, and hence g is minimum at equator, and that is a ge minus re omega square. So friends, that is the variation of the gravitational acceleration of the earth because of the rotation of the earth. That is completely different. Friends, if we draw the graph, if we draw the graph of variation of the gravitational field intensity or gravitational acceleration with the distance from the center of the earth, तो अर्थ के सेंटर से शुरू करके अगर सरफेस तक हम पहुंचेंगे ना, तो वहां पे आपका इंटेंसिटी या जी प्रोपोर्शनल टू आर होगा। कहां तक ऐसा होगा? सरफेस तक। उसके बाद क्या होगा भैया? तो उसके बाद जो होता है वो जी प्रोपोर्शनल टू और आई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. ओके। तो फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया।
देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या डेप्थ के लिए कोई कंडीशन है, ये जो डेप्थ वाला जो फॉर्मूला है उसके लिए कोई कंडीशन डी वेरी वेरी लेस देन आर एस आई है? नहीं, दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डेप्थ। ये डी के कोई भी वैल्यू के लिए वैलिड है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, डेप्थ वाले फॉर्मूला में कोई कंडीशन नहीं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। So friends, potential of point like mass can be given by, इसको मैं phi से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, v से भी रिप्रेजेंट, मैंने मान लो कि मैंने पोटेंशियल के लिए phi सिंबल यूज किया है। तो पॉइंट लाइक मास कैपिटल M है तो उसका पोटेंशियल r डिस्टेंस पे कितना होगा? तो बोले माइनस gm अपॉन r होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट लाइक मास का जो पोटेंशियल है इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है। पोटेंशियल ऑफ अ शेल। सो फ्रेंड्स, शेल की बात करते हैं तो शेल के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शेल के पोटेंशियल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल। किसी को पता है स्फेरिकल शेल जो था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना था? Okay, nobody know. So inside the shell potential is constant and its value is exactly equal to the potential on the surface of the shell. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना वो शेल का कांस्टेंट होता है इनसाइड द शेल, उसके सरफेस जितना होता है, दैट इज एक्जेक्टली इक्वल टू phi on the surface and that is remaining throughout the insider point remaining constant. Remember, intensity inside the shell is always zero. हमने ये टेक्स्ट बुक में है ये वाला बात कि भाई शेल, स्फेरिकल शेल के अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज जीरो, बट रिमेंबर पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज नॉन जीरो। एंड केस नंबर 2, आउटसाइड द शेल। ये शायद आपके लिए नया है, आपके कंटेंट में नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि भाई कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे जेडब्ल्यू में है, आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। तो आउटसाइड द शेल, तो शेल के आउटसाइड के बारे में सोचे तो आउटसाइडर पॉइंट के लिए शेल जो है ना वो पॉइंट लाइक मास बिहेव करता है, और पॉइंट लाइक मास का तो पोटेंशियल क्या है भैया? माइनस जीएम अपॉन स्मॉल आर है। तो outside the shell it behave as a point like mass and its potential becomes minus gm upon small r. तो अगर r का आपका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से शेल के रेडियस से ज्यादा है, मतलब पॉइंट बाहर की साइड है, तो इट विल कंसिडर टू बी अ पॉइंट लाइक मास। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका gm upon r minus gm upon r। इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना शेल के लिए, potential versus distance from center, potential versus distance from the center अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो कैसा मिलेगा पता है आपको? तो सेंटर से शुरू करके उसके सरफेस तक तो कांस्टेंट मिलेगा, नेगेटिव कांस्टेंट है। सो ग्राफ मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है, माइनस जीएम अपॉन कैपिटल आर वो कांस्टेंट मिलेगा। फिर उसके बाद उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो एज ए 1 अपॉन आर उसका वैल्यू चेंज होगा, डिक्रीज होगा। पहले तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद एज पर 1 अपॉन आर वो डिक्रीज होगा उसका नेगेटिव वैल्यू। इज इट ओके फ्रेंड्स?
तो ये शायद आपके लिए नया है, बट आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इज इट ओके? आवाज आ रही है Yes, फ्रेंड्स sir. मेरी? तो ये पोटेंशियल के बारे में था। अब एक मैंने पोटेंशियल के आज अभी तक दो केसेस हमने डिस्कस किए। एक था पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट लाइक मास, दूसरा जो था वो पोटेंशियल ऑफ अ शील्ड। अब एक और टॉपिक में आपको बहुत ही मतलब अलग सा है, वो फर्स्ट टाइम आप ये टॉपिक समझ रहे हो। इट इज इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट टाइम। सो पोटेंशियल ऑफ अ सॉलिड स्फीयर like earth. Earth can be considered to be a solid sphere. तो अब पोटेंशियल ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, तो देखो आउटसाइडर पॉइंट के लिए तो वापस से हम वो आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई आउटसाइडर पॉइंट के लिए ये जो सॉलिड स्फीयर है वो भी क्या हो जाएगा, बोलो। फॉर द पॉइंट आउटसाइड, that is distance from the center is greater than its radius, तो मैंने बताया कि भाई वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट मास। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया आउटसाइड के लिए, माइनस GM अपॉन R। तो ये आउटसाइडर पॉइंट के लिए तो यही फॉर्मूला है, बट इनसाइडर के लिए कुछ नया सा है। फॉर द पॉइंट इनसाइड, मतलब शेल के अंदर, शेल नहीं है सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर की साइड जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग ही है। उसका प्रूफ हम 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल आएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। सो एट दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। अभी मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपको ये जो फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा हूँ कंपल्सरी आपको याद रखना है। एंड द फॉर्मूला इज for the point inside can be given by minus GM upon 2R 1 minus R square upon capital R square. So this is the formula. So the formula is this one is minus 3GM upon 2R. Okay. Just a moment. Yeah, here it is. So it is a minus GM upon 2R 3 minus R square by R square. This is the formula. तो भैया ये फॉर्मूला है where R is the radius of a sphere. R जो है वो radius of sphere है, solid sphere है, and small r is the distance of that point from the center of a sphere. अब इसके ऊपर से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली अगर सेंटर में आपको फाइंड करना है तो सेंटर के लिए आपका वैल्यू R इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर हम सेंटर पे अगर फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो सेंटर पे R का वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे। What should be the value of the small r for the if you wants to find the potential on the center of the sphere? अरे बोल भी दो। 0. तो अगर आप सेंटर पे फाइंड करना चाहते हो तो मतलब के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस तो 0 ही होता है ना।
तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा -gm/2r into 3 - 0. So that means your formula is going to be came out by -3/2 gm/r. Am I right, friends? अगर 0 प्लेस करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा -3/2 gm/r. So friends, the conclusion is that ये अब -gm/R तो सरफेस का होगा, बिकॉज सरफेस पे अगर आप प्लेस करोगे तो सरफेस के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा. तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लेस करोगे ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -gm/R रहेगा. मतलब बात ये हुआ कि अगर आप सरफेस पे फाइंड करना चाहते हो तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा. तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो -gm/कैपिटल R रहेगा. तो इन दोनों को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसका रीजन ये हो, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर सेंटर पे स्फीयर के सेंटर पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है तो वो सरफेस पे जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल उसके 1.5 टाइम होगा. चलो क्या ये समझ में आया आपको फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो किसका, तो बोले पोटेंशियल ऑफ अ स्फीयर वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, तो वो ग्राफ कैसा रहेगा. तो बोले एक तो आपका कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू मतलब सरफेस. तो सरफेस के बाद तो वो एज अ पॉइंट लाइक है, तो वो तो 5 प्रोपोर्शनल टू हमको पता ही है कि वो नेगेटिव वैल्यू उसका 1/r के हिसाब से डिक्रीज होने वाला है, वो तो पता ही है हमको. उसके पहले क्या था, तो उसके पहले ये था कि भाई सरफेस पे कितना था, तो बोले -gm/R था सरफेस पे. बट उसके पहले सेंटर पे कितना था, सेंटर पे बोले उससे ज्यादा था, कम नहीं था. तो सेंटर पे उसका नेगेटिव वैल्यू -3/2 gm/R है सेंटर पे. तो सेंटर पे सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, उसके बाद रिड्यूस होगा, ऐसे होगा. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ potential versus distance for the solid sphere. It is first time I am introducing, and this same topic is going to be discussed in the 12th standard with respect to the elasticity. Is it understood, friend? ये पता चला भैया Yes, ग्राफ? sir. Is it understood? सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला सिमिलर ही होगी ना? सिमिलर यही. होगी, बट वहां पे माइनस नहीं आएगा, जी के बदले के आएगा. इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या होगा, जी के बदले के आएगा एंड एम के बदले आपका चार्ज क्यू आ जाएगा. अदरवाइज द फॉर्मूलाज एंड ग्राफ एज वेल सब कुछ सेम रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा वहां पे. इज इट क्लियर? ओके सर. तो ये आपका पोटेंशियल हुआ. फ्रेंड्स, अगर अर्थ के बारे में सोचते हैं, अच्छा जाने दो, कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है तो हम एक साथ चारों क्वांटिटी को एक साथ समझ लेते हैं. चलो, फॉर पॉइंट लाइक मास, नंबर 1 फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था भैया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. इंटेंसिटी अगर फाइंड करेंगे ना पॉइंट लाइक मास की, तो हो जाएगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर. ये दोनों क्वांटिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू, इट इज दे आर डिपेंड विथ ऑन depend with relation proportional to 1 upon r square. And number 2, they both are vector quantity. ये दोनों vector quantity है. Potential तो minus gm upon r, and potential energy, fourth quantity.
तो फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो था ना वो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर था। तो ये दोनों क्वांटिटी आप देख सकते हो कि वेराइज विथ रिलेशन, कौन से रिलेशन से वो वेराई कर रही है, 1 अपॉन आर एंड both quantities are they are a scalar quantity. Is that clear? Is it okay friends? Yes sir. फ्रेंड्स उसके बाद एक टॉपिक था एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी। तो अगर भैया आप कोई भी सिस्टम का, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर टोटल एनर्जी फाइंड करते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड अगर वो नेगेटिव मिलता है टोटल एनर्जी तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट ऑब्जेक्ट इज इन बाउंडेड स्टेट। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी निकालते हो और अगर वो आपको नेगेटिव मिलता है तो उसका मतलब ये समझना है कि वो आपका बाउंडेड स्टेट में, तो फिर उसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो क्या करना पड़ेगा। To make that object free, the required energy, which is also known as a escape energy, तो कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो बोले उसका जो टोटल एनर्जी है ना वो नेगेटिव होगा बट उसका उतना ही आपको पॉजिटिव एनर्जी देना पड़ेगा। तो टू मेक दिस ऑब्जेक्ट फ्री, रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देना है। दैट शुड बी द मोड ऑफ, मतलब वो नेगेटिव होगा टोटल एनर्जी तो आपको ये पॉजिटिव एनर्जी इतना ही देना है, तो इसी को एस्केप एनर्जी बोलते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट अंडरस्टूड? फ्रेंड्स एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। ओके, escape energy for object which are at rest on the surface of earth, तो उसका जो फॉर्मूला है, जो अर्थ के सरफेस पे स्टेशनरी है तो उसका जो एस्केप एनर्जी है उसका फॉर्मूला जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर है। एंड उसका जो एस्केप स्पीड है अभी मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। It is my voice is are you able to आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके,
तो एस्केप स्पीड जो है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो √2g mass of the earth upon radius of the earth, that is also written in this form √2g ERE, and that is also written in this form. ये सारे एस्केप स्पीड के फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूला, इसका जो वैल्यू अगर फाइंड करोगे ना तो आपको मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो कंसेप्ट ये है आपका कि भाई अगर आपको एस्केप वेलोसिटी या एस्केप एनर्जी निकालना है तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड आउट दी टोटल एनर्जी। तो देखना है कि अगर आपका टोटल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो समझना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंडेड स्टेट में है, तो उसको फ्री करने के लिए आपको बाहर से काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा, तो बोले उसका जितना भी नेगेटिव एनर्जी है टोटल एनर्जी, उतना ही आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा। और उसके लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे हम, बोलो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एस्केप स्पीड। तो ये सबके लिए कॉमन है। अब उसका एक स्पेशल केस है कि भाई हम अपने हमारे जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही पड़े होते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा आंसर। तो उसके लिए हमने निकाला, तो फॉर्मूला मिला हमको एस्केप एनर्जी का, G कैपिटल M स्मॉल m by r, where capital M is the mass of the earth, r is the radius of the earth, and small m is the mass of that object which is need to be escaped. एस्केप एनर्जी के फॉर्मूला आप देख सकते हो कि वो मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बॉडी के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बट एस्केप वेलोसिटी जो है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंडेंट, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंडेंट है, बट बॉडी के मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या चाहे लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से थ्रो करते हैं अर्थ में से, तो वो डेफिनेटली एस्केप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक अभी चैप्टर का, वो था सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स तो सैटेलाइट के लिए हमने 2-3 चीज डिस्कस की थी। तो सैटेलाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो तो सबका जैसा होगा वैसा ही होगा फॉर्मूला उसका भी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है सैटेलाइट का, तो वही है U इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। उसका काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, तो फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना उसको हाफ कर दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा आपका सैटेलाइट का, तो GMM अपॉन 2R हो जाएगा। और अगर वहां से माइनस को निकाल दोगे, टोटल एनर्जी में से माइनस को निकाल के प्लस कर दोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा भैया, वो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब देखो भैया टोटल एनर्जी जो है ना वो -G मामा अपॉन 2R आया, तो फिर वो सैटेलाइट को अगर आपको एस्केप करना है तो आपको एडिशनल कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बोलो भैया कितना देना पड़ेगा आपको। मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? कोई आवाज सुन पा रहा है क्या? Yes, sir. तो एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, Plus G upon 2R. तो ये दोनों फॉर्मूला को देख के हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, सो कंक्लूजन यहां पे हमको ये मिलेगा कि इफ
the kinetic energy of satellite is doubled. जो भी है देखो काइनेटिक एनर्जी जितना भी है उसका उतना ही एडिशनल हम प्रोवाइड करेंगे. हेलो हाँ बोलो. सर, आवाज नहीं आ रही. Am I audible to you friends? मेरी आवाज आ रही है आपको? Friends, am I audible to you? आवाज आ रही है भैया? सर कभी Yes, sir. ओके. तो कंक्लूजन ये निकला भैया कि अगर हम यहाँ पे अगर हम जितना काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट का है उतना ही काइनेटिक एनर्जी हम एडिशनल प्रोवाइड करेंगे एडिशनल, तो क्या हो जाएगा भैया? तो हमारा जो टारगेट है एस्केप करना वो अचीव हो जाएगा. देखो एस्केप एनर्जी कितना है तो बोले काइनेटिक एनर्जी जितना ही है. तो मतलब ये हुआ कि अगर हम सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी डबल कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर लेंगे, देन व्हाट हैपन? कोई बताएगा मुझे? बोलो. Means kinetic energy need to be doubled and velocity need to be √2 times. अगर उसका सैटेलाइट का रोटेशन का स्पीड अगर √2 टाइम हो जाएगा ना, जो भी उसका ऑर्बिटल स्पीड है उसको हम √2 टाइम कर देंगे तो स्पीड डबल √2 टाइम होना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाफ mv² में अगर v √2 टाइम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा. तो अगर ये होगा टू मेक इट एस्केप. तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि सैटेलाइट का अभी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड है, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा तो वो एस्केप हो जाएगा. तो √2 × 100 करना है आपको. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर. ओके सर. इसका मतलब ऐसा हुआ. अब आपको ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट का पता होगा, तो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड जो है ना उसका फॉर्मूला ये है भैया, VO is equals to √gm upon small r. √gm upon small r. This is what is the orbital speed of a satellite. Friends, पीरियोडिक टाइम जो है ना तो वो आपको पता होगा कि केपलर्स थर्ड लॉ के साथ ओबे हो रहा है. तो पीरियोडिक टाइम t² प्रोपोर्शनल टू r³ होगा सैटेलाइट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट देखो एक और चीज है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है. कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं. तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि सैटेलाइट का जो होता है वो mvr होता है. अब एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू r क्रॉस p, rp sin थीटा. सर्कुलर मोशन के लिए r एंड p परपेंडिकुलर होता है. rp sin 90 sin 90 बनता है, तो r into p का मतलब mv. तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर गलत वेलोसिटी नहीं, ये क्या है भैया? किसको पता है? किसका फॉर्मूला लिखा मैंने? एंगुलर बोलो, किसका फॉर्मूला लिखा मैंने? ये बता पाएगा कोई? मोमेंटम. हाँ, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है. एम वी जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि gm/r है इनटू r.
तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैंने ये भी देखा था कि एंगुलर मोमेंटम एंड उसका रेडियस जो है रोटेशन का, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो न्यूमरेटर में आर है, डिनोमिनेटर में रूट आर है, तो फाइनली आपका न्यूमरेटर में रूट आर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के लिए मैंने 5 6 7 चीज आपको समझाया। आया बात समझ में फ्रेंड्स? उसको एस्केप करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? इज इट ओके? ये समझ में, यहां तक समझ में आया भैया? यस सर। तो आपके सिलेबस के अंदर जो था, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो तो सारा यहाँ पे आ ही गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे भी टॉपिक यहाँ पे मैंने आपको बताए कि जो अलग थे, जो नए थे आपके लिए। अब कुछ और डिस्कशन में यहाँ पे आपको दिखाने जाने वाला हूँ। तो ये नोट्स है, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर अलग अलग केसेस दिए हुए हैं जो आपको समझना चाहिए, जेडबल नीट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो, क्या आपको ये दिख रहा है फ्रेंड्स नोट्स? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट बॉडीज। यस सर। तो उसमें सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर माने अर्थ, तो अर्थ का तो पता है आपको। सॉलिड स्फीयर माने अर्थ, तो अर्थ के लिए तो आपको पता होगा कि उसका जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो बोले बाहर की साइड तो gm/r² है, अंदर की साइड ओके तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ बॉडी, डिफरेंट बॉडी। बाहर की साइड तो आपको पता है कि बिहेव एज अ पॉइंट लाइक मास gm/r², सरफेस पे gm/, और अंदर अंदर की साइड r<r के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया? तो बोले उसका जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, याद है आपको? 4/3 पाई जी रो इनटू स्मॉल r। तो अगर वेर रो इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू आप m/4/3 पाई r क्यूब कर दोगे ना, तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हमने लिखा हुआ था। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल को आपको पता है कि अंदर की साइड इंटेंसिटी कितना होता है शेल के अंदर? शेल के अंदर इंटेंसिटी कितना होता है? अभी तो डिस्कस किया हमने, याद है किसी को? तो भैया शेल के अंदर जो इंटेंसिटी होता है वो 0 होता है, और बाहर की साइड तो शेल जाने, शेल कैसा बिहेव करेगा? बाहर की साइड तो शेल जैसे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है ऐसे बिहेव करेगा। तो अंदर की साइड इंटेंसिटी 0 होगा, बाहर की साइड इंटेंसिटी आपका 1 आपको। देखो इंटेंसिटी अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंटेंसिटी के बारे में है। पोटेंशियल तो शेल का अंदर की साइड कांस्टेंट रहता है, मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा जो केस है वो इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग। तो मैंने आज बताया था आपको, याद है आपको कि रिंग का इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, याद है आपको कुछ? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रिंग। आप देख सकते हो कि रिंग के सेंटर पे तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, बट उसके एक्सिस पे मैंने है ना एक्स लेके आपको फॉर्मूला दिखाया था, यहाँ पे आर लेके, कैपिटल आर। यहाँ पे रिंग का जो रेडियस लिया हुआ है, रिंग का जो रेडियस लिया हुआ है वो स्मॉल ए है, एंड डिस्टेंस आर लिया हुआ है सेंटर से।
मैंने x एंड कैपिटल R लेके लिखा था फॉर्मूला, बट वही फॉर्मूला है gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो मतलब एक्सिस का कोई भी पॉइंट है तो वहां पे इंटेंसिटी ये मिलेगा। सेंटर पे ऑब्वियसली x जीरो हो जाएगा, r जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो रहेगा। तो अगर एक बार आपको इंटेंसिटी मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप फोर्स इजीली फाइंड करोगे। तो इंटेंसिटी को अगर आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ठीक है। एक और फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क के लिए फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ अ डिस्क। तो फ्रेंड्स ये डिस्क का जो इंटेंसिटी होता है वो कहाँ पे आप किस पॉइंट पे फाइंड करते हो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला ये रहा G2G कैपिटल M स्मॉल r, where small r is the distance from the center upon a square, a is the radius, 1 upon r minus 1 upon, उसको 1 माइनस कोस थीटा के हिसाब से भी लिख सकते हो आप। और डिस्क के सेंटर पे तो इंटेंसिटी जीरो होता है। तो ये जो चार केसेस थे वो सारे इंटेंसिटी के थे। अलग अलग मास सिस्टम के इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अब हम जो बात करेंगे वो पोटेंशियल के लिए बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिस्कशन हो गया है। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नहीं किया हुआ है, पोटेंशियल ड्यू टू शेल मैंने करा दिया है आपको, और पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, एज वेल एज आई आल्सो हैड डिस्कस द पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। वो दोनों हमने डिस्कस कर दिए हैं। आज के दिन में ही हमने बहुत डिटेल में जाके डिस्कशन किए थे। तो पोटेंशियल ऑफ रिंग ये नहीं किया था। तो रिंग के पोटेंशियल कोई भी पॉइंट पे माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। स्मॉल a इज द रेडियस एंड स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, एंड उसके सेंटर पे स्मॉल r इज इक्वल टू 0 लिख दो तो माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा। शेल के बारे में मैंने आपको बताया कि इनसाइड द शेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, नेगेटिव कांस्टेंट, और उसके बाद 1 अपॉन r के हिसाब से वेरी होता है। तो ये स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल हो गया। एंड अभी डिस्कस किया जो बहुत ही अच्छा चीज था कि भाई सॉलिड स्फीयर का क्या होगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ना वो नेगेटिव मैक्सिमम होता है, सेंटर पे 3/2 जितना होता है उसके सरफेस से। तो ये ग्राफ भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया सॉलिड स्फीयर का। उसके बाद देखो हमने सैटेलाइट के अलग अलग क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था, पीरियोडिक टाइम, लीनियर, यहाँ पे और भी क्वांटिटीज है वैसे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मतलब एस्केप एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वो सारा टाइम पीरियड, वेलोसिटी। एक लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, बाकी ये सारा डिस्कशन फॉर्मूला के साथ मैंने लिख के आपको दिया हुआ है। और सीधी सी बात है कि अगर आपको एक कोई सैटेलाइट को एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में ले जाना है तो आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो दोनों ऑर्बिट के जो टोटल एनर्जी है उसका डिफरेंस जितना एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं थे बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो वो सारे थ्योरी कांसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस। ये जो नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा। कुछ क्वेश्चंस भी मुझे आज करवाने हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम गुड क्रिटिकल लेवल क्वेश्चंस। तो कुछ क्रिटिकल लेवल के हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं आपको ये पूरा चैप्टर का जो नोट्स है वो भी, ये आज का जो मैंने थ्योरी कंसेप्ट जो कराया था वो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डिनरी थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग मैं आपको पूरा भेज दूंगा ग्रेविटेशन का। ऐसे नेक्स्ट टाइम जब आप लेक्चर में आओगे तो हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहले आपको ग्रेविटेशन के जितने भी थ्योरी कंसेप्ट आपके टेक्स्ट में थे वो मैंने कराए। कुछ ऐसे भी टॉपिक कराए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में है बट टेक्स्ट में नहीं है।
देखो ये चैप्टर टारगेटेबल चैप्टर है, ग्रेविटी मोस्टली सॉल्व हो सकता है, जेडबल नीट के लिए ग्रेविटी टारगेटेबल चैप्टर है। तो ये चैप्टर में आपको करना चाहिए टारगेट, इसको सॉल्व करना ही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1। देखो, imagine a light planet revolving around the very massive star in a circular orbit of the radius r with the time period t. The gravitational force between the planet and star is proportional to r raised to -5/2। देखो ये हमको दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना वो 1/r² नहीं है, तो वो r raised to -5/2 है, ऐसा दिया हुआ है। ऐसा हो सकता है बिकॉज ये 1/r² वाली जो बात थी वो किसके लिए वैलिड थी? वो किसके लिए वैलिड था आपको पता है? gm1m2/r² किसके लिए वैलिड था? बोलो। Point size objects. हाँ, फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये लिखा हुआ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू r⁻² -5/2 पॉसिबल है। तो करना क्या है, तो बोले t² प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो t² का क्या होगा? कोई बात नहीं, तो कहना इसे f is equals to k into r⁻² -5/2 if we remove the proportionality sign. Is that clear? Yes. Now required centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ऑब्वियसली कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक लिखा है ना, मैसिव स्टार के आसपास एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मैसिव स्टार के आसपास एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो क्यों रिवॉल्व करेगा भाई? तो बोले उसके ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए। तो मतलब क्या ना, इसे mv²/R, उसका रेडियस जो सर्कुलर का रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो mv²/R क्या ना, इसे इट इज इक्वल्स टू k into r⁻² -5/2। इज इट ओके फ्रेंड्स? ऐसा लिख सकते हैं हम क्या? हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. अब मुझे है ना पीरियोडिक टाइम तक पहुंचना है, तो कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी के बदले में क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट 2πr/t? इट्स ओके। यस और नो? Yes. पता है आपको v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, एंड ओमेगा को हम 2π/t भी कह सकते हैं। तो अब सोचो क्या होगा? Yes. m/r 4π² is equals to k r⁻² -5/2। एक पावर कैंसल, तो इसका मतलब हुआ t² प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? तो t² को इस साइड ले जाओ तो ऊपर r आएगा, नीचे r⁻² -5/2, तो दैट मींस t² प्रोपोर्शनल टू r⁻² 1 + 5/2, तो इट विल बी इक्वल्स टू r⁻² 7/2। तो ये आपका 7/2 वाला आंसर जो है दैट इज द राइट आंसर। इज इट ओके फ्रेंड्स? ये वाला Yes, sir. Is it understood? चलो और आगे बढ़ते हैं। Second question, imagine the magnitude of the gravitational force at the distance r1 and r2 from the center of the uniform sphere of a radius capital R and mass m
are F1 and F2 respectively, then what is the true here? Or what are the true here? बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, आईआईटी में पूछा हुआ है, एक बार आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोच के बताओ, चलो सोच के बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्फीयर, मतलब ये सॉलिड स्फीयर की बात है, तो फोर्स का क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद करो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू तो इंटेंसिटी होता है। एक तो चीज ये है कि फोर्स प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, एंड फॉर सॉलिड स्फीयर याद करो, अगर r लेस देन r है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाजी रो स्मॉल r, मतलब I प्रोपोर्शनल टू r है। एंड फॉर द पॉइंट फॉर r ग्रेटर देन r सॉलिड स्पीड, तो वो हो जाएगा आपका gm/r² एज अ पॉइंट लाइक मास। सो I प्रोपोर्शनल टू G और I दोनों एक ही हिसाब से चलते हैं, मतलब एक ही हिसाब से उसका कह सकते हैं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है? देखो F1/F2 इज इक्वल टू R1/R2, R1 यस, ये गलत, ये सही है, बिकॉज R1 लेस देन R, R2 लेस देन R, मतलब दोनों इनसाइडर पॉइंट है। तो इनसाइडर पॉइंट के लिए आपको पता है कि I प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो I1/I2 मतलब F1/F2 इज इक्वल टू R1/R2 होगा होगा होगा, ये सही है। दूसरा वाला सही है, दूसरा नहीं, गलत है। क्यों? बिकॉज दोनों आउटसाइडर पॉइंट है, दोनों पॉइंट, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो R F1/F2 इज इक्वल टू R1/R2², नहीं, क्या होता तो सही होता वो, ये सही होता, क्या होता तो, अगर R2²/R1² होता ना तो वो ठीक था। Because F proportional to 1/R² for the point outsider, तो ये तो गलत है, ये सही होता, ये तो गलत ही है, बिकॉज R² आता है आउटसाइडर पॉइंट, ये इनसाइडर पॉइंट के लिए तो हमने देख लिया कि स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन सही आएगा, दैट इज ऑप्शन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, चलो question number 3, a satellite as is moving in the elliptical orbit around the earth, the mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth, तो क्या होगा? Okay, a satellite is moving in elliptical orbit around the earth, the mass of a satellite is very small as compared to the satellite, as compared to the earth. The acceleration of the satellite is always directed towards the center of the earth. ये सही है, क्यों? Because of सेंट्रीपेटल फोर्स। सर्कुलर मोशन में वही तो होता है कि भाई सर्कुलर मोशन क्यों होता है, तो बोले सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए ये होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है, तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, सही बात है। सेकंड ऑप्शन ये तो करेक्ट है। The angular momentum of a satellite about the center of the earth changes its direction, but its magnitude remains the same. तो सेकंड ऑप्शन भी मुझे तो सही लग रहा है कि एंगुलर
देखो एक काम करते हैं, लेट मी चेक। ये अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट घूम रहा है, ये उसका मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये उसका आर का डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस पी अगर आपको करना है तो राइट हैंड स्क्रू करना पड़ेगा, तो यू हैव टू रोटेट द स्क्रू फ्रॉम दिस टू दिस। तो योर एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज आउटवर्ड। तो आई थिंक ये डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी वेरी नहीं करता है, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, एंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। ये भी कम लीनियर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट गलत बात है, बिकॉज लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है। अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वो क्वांटिटी आप उसको कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं। हाँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट रिमेंस कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो ये सही है। अच्छा मैंने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट लिखा हुआ है। अब एलिप्टिकल अगर ऑर्बिट होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो चीज ऐसी है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में कभी सैटेलाइट नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो कभी नजदीक आएगा, कभी दूर जाएगा। तो जब नजदीक आएगा ना सैटेलाइट, तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो सही है कि भाई एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इज दैट क्लियर? Yes. Next question. A mass m split into the two part small m and capital M minus small m, and they are separated by the certain distance, let it is r. Then what is the ratio of a small m upon capital M to make the maximum gravitational force? अच्छा, ये कैपिटल M का एक मास है, उसको है ने सेपरेट किया है दो पार्ट में, एक स्मॉल m एंड दूसरा वन जो है वो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और डिस्टेंस दोनों के बीच में r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? तो बोले g स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा g बाई आर स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? तो बोले f को मैक्सिमाइज करना है। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मैंने कभी लिखाया होगा कि अगर कोई भी क्वांटिटी को आपको मैक्सिमाइज करना है तो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 करना पड़ेगा। तो एक रूल है मैथ्स का, whenever any quantity, physical quantity became maximum or minimum, its differentiation with respect to its variable is a 0। ये रूल है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है? तो r तो फिक्स्ड है, वेरिएबल r नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है भैया? वेरिएबल स्मॉल m है। कैसा पार्टीशन होगा वो पता नहीं है। तो ये रूल है कि कभी whenever any function becomes maximum और minimum, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो df upon dm becomes 0। तो ddm of
g by r square small m capital M minus small m square is equals to 0। अब ये g by r square बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट है, 0 में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो अब मैं करने वाला हूं डिफरेंशिएशन। स्मॉल m तो बाहर आ जाएगा, नहीं कैपिटल M बाहर आ जाएगा, स्मॉल m का m के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, -2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल M इज इक्वल टू 2m। तो मुझे फाइंड करना है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M फाइंड करना है, तो आंसर आएगा आपका 1/2। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये नोट्स, ये मैंने जो अभी करवाया आपको नोट्स वगैरह, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ओके बाय।